The objective of today's lesson is to discuss the goals and principles of protection in modern computer system. And explain how protection domains are used to provide protection in the computer system. So what are the goals of protection? A computer system is composed of a collection of objects. These objects can be put into two classes, hardware and software. In earlier lessons, we have called them resources. The computer system जो है, it consists of resources, and we can put these resources into two classes, hardware resources and software resources. However, in the context of protection, this chapter use the term objects instead of resources. तो interchangeably जो है दोनों terms जो है वो इस्तेमाल हो रही, we can call them either resources or objects. So computer system जो है, it is composed of objects or resources which can be put into two classes, hardware resources and software resources. For example, hardware resources कौन-कौन से हैं? CPU, memory, I/O devices like printer है, tape drive है, CD-ROM है. These are the hardware resources. Software resources जो हैं, they can be described as processes हैं, semaphores हैं, files हैं. These are the software resources. Each object has a unique name and can be accessed through a well-defined set of operations. This means every object in the system, either it is a hardware object or a software object, it has a unique identification by which we can refer to this object. So every object can be referred using a unique name or ID. And on objects, we can perform operations. The operations that we can perform on an object, they vary from object to the next object. For example, on memory object, we can perform either read operation or write operation. This means we can either write to some memory location or we can read some value from the memory location. So two operations can be performed on memory object. Similarly, in case of CPU, only one operation can be performed, that is execute program instructions. In case of CD-ROM, if CD-ROM is an object, then which operations we can perform? We can perform read-only operation. So operations जो हैं, they vary from one object to the other object. There is no standard set of operations जो कि हम कह सकें कि तमाम objects के ऊपर जो है we apply same operations. These operations will change from one object to the next object. The protection problem is to ensure that each object is accessed correctly and only by those processes that are allowed to do so. So the first thing is ensuring that each object is accessed correctly. This means objects should be accessed by users or processes according to some stated policy. For example, printer object की अगर हम बात करें, there might be policy in the system कि students जो हैं they cannot use printer.
या जो है पॉलिसी में भी कि स्टूडेंट जो है दे कैन यूज प्रिंटर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो है स्टूडेंट्स जो है वो प्रिंटर यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड दिस टाइम जो है स्टूडेंट्स जो है वो प्रिंटर यूज नहीं कर सकते। Now this is known as policy, a decision that how a resource will be utilized or how an object will be accessed or utilized. Now the protection means it should be ensured that if there is some user, some student process, and it is going to access this printer object, then it should be according to the stated policy. Protection mechanism should ensure कि अगर स्टूडेंट प्रोसेस जो है इट इज अलाउड टू एक्सेस दिस प्रिंटर ऑब्जेक्ट, तो क्या ये प्रिंटर ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर एक्सेस कर रहा है? अगर तो वो उसको स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर एक्सेस कर रहा है, इट मींस के देयर इज नो प्रॉब्लम इन द सिस्टम। हाउएवर अगर वो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर एक्सेस नहीं कर रहा, दैट मींस देयर इज प्रोटेक्शन कंसर्न। वी मस्ट डील विद दिस सिचुएशन केयरफुली। सेकेंडली जो है protection problem says that objects should be accessed by those processes that are allowed to do so. Again, we can take this example of printer and student processes. Suppose student processes they are not allowed to access the printer. So now if a student process tries to access the printer, it should not be, access should not be granted, because this process is not allowed to use the printer. So again, this is a protection concern. So we can say what is protection? We can define protection as the protection जो है, it is that how users and processes access the objects in some controlled manner according to some policy. And remember, ये जो policy होती है, it is decided by the system administrators. System administrators या आपका operating system जो है, it will decide that what is the policy regarding the access of objects. So if objects are accessed correctly, if we can ensure that every object is accessed correctly and only by those processes that are allowed to do so, what will be the benefit of this? This means we have solved the protection problem, and we can say that the reliability of the system will be increased, and as well as the integrity of the system will be maintained. Another thing is that from where this protection has emerged, the concept of protection, it has emerged from the multi-programming systems. Because in multi-programming systems, if you can remember, there are more than one processes in the main memory. And we said that there must be some protection mechanism that will ensure that these processes don't interfere into each other's address space. मेमोरी के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, और हमें ये इंश्योर करना है कि ये प्रोसेसेस जो हैं ये एक दूसरे की एड्रेस स्पेस में या मेमोरी रीजन के अंदर जो है इंटरफेयर ना कर सकें. सो दिस इज फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन हैज इमर्ज्ड. And with the advent of time sharing systems, which is the next logical extension of multi-programming systems, protection is more direly needed. Because time sharing systems के अंदर जो है we see ना सिर्फ ये कि मेमोरी के अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, बल्कि ये प्रोसेसेस जो हैं they belong to different users. So we need more protection to ensure that
कि ये डिफरेंट यूजर प्रोसेसेस जो हैं ये एक दूसरे के एड्रेस स्पेस के अंदर जो है इंटरफेयर ना करें, या जो है ये जो सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोई हार्मफुल वे के साथ जो एक्सेस ना करें। फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी सम मैलिशियस प्रोग्राम जो कि जो है सिस्टम की इंटेग्रिटी को जो है वो डैमेज कर सकता है, उसको कंप्रोमाइज कर सकता है, या जो है सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है इट कैन सफर कि there is some malicious process which has taken the control of the system and it has given it to some particular process, और दूसरे processes जो हैं they are still waiting for the CPU allocation. So system reliability जो है, a system may fail if there is no protection mechanism. In order to ensure that, in order to ensure the system reliability as well as the system integrity, we need to provide protection mechanisms. The principles of protection. Principles क्या होते हैं? Principles are the guidelines. These are the rules, are the guidelines that we use to design and develop systems. And because operating system जो है, it is also a system. So in order to develop or design an operating system, we should follow some principles or guidelines. These guidelines will simplify the development process and the design process. It will be ensured कि अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो जो हमारा सिस्टम होगा that will be in a consistent state. So a guiding principle for the protection is known as principle of least privilege. Principle of least privilege, it describes how we can provide protection in operating system. And this principle states programs, users, and systems should be given just enough privileges to perform their task. This means that there are programs which are running in the system and there are users which are going to access this system. These programs and users should be given just enough privileges, just enough rights, ताकि वो जो specified task perform करना चाहते हैं उसको perform कर सकें. We can take an analogy to explain this. कि जिस तरह जो है एक you can say एक guard है एक ऑफिस का. Now if the guard has key to just public areas of the office, like उसके पास reception area की key है और उसके पास जो है से जो waiting area है ऑफिस के अंदर उसकी key है, and this guard जो है it say loses this key or this key is misused, तो जो resulting damage होगा that will be just limited to the waiting area and the reception area जिसकी उस की के थ्रू जो है वो एक्सेस थी. लेकिन अगर सपोज गार्ड के पास एक मास्टर की है जिसके साथ जो है वो तमाम ऑफिसेस को भी ओपन कर सकता है, जो लॉकर्स हैं उनके अंदर उनको भी ओपन कर सकता है, उसके पास पूरे ऑफिस की हर चीज की हर जो है डोर की जो है वो एक्सेस है. एंड नाउ इफ दिस गार्ड जो है इफ ही लूजेस दिस की, तो डैमेज जो होगा that will be much more as compared to the in earlier case जो हमने बात की. Because अब अगर वो की लूज कर देता है और की जो है वो मिस यूज होती है, तो जिसके पास वो की होगी वो तमाम ऑफिसेस को उस बिल्डिंग के तमाम जो है वो कैबिनेट्स जो हैं जो उन तमाम जो है लॉकर्स जो हैं उनको वो एक्सेस कर सकता है, उनको ओपन कर सकता है. सो द डैमेज जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दिस कि अगर हम उसको गार्ड को जस्ट एक रिस्ट्रिक्टेड जो एरिया जो है एक लिमिटेड जो है एक बाउंडेड एरिया जो है उसकी एक्सेस प्रोवाइड करें. एंड दिस इज एग्जैक्टली द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कि एक यूजर या प्रोग्राम के पास सिर्फ उतनी प्रिविलेजेस या राइट्स होने चाहिए जो कि उसको अपनी टास्क परफॉर्म करने के लिए नीडेड है. मसलन एक यूजर जो है वो
से टेप ड्राइव से कुछ डेटा जो है वो उसको लेगा, उसको प्रोसेस करता है और उसको प्रिंट करना चाहता है, तो इस यूजर को जस्ट दो रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस होनी चाहिए। टेप ड्राइव की, उस पर्टिकुलर फाइल की जो कि उस टेप ड्राइव के ऊपर जिसको वो एक्सेस करना चाहता है, जिसको वो मैनिपुलेट करना चाहता है, और प्रिंटर की। बियॉन्ड दिस जो है इस यूजर को से हमें सीडी रोम की एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, या जो है हमें इस यूजर को जो दूसरी फाइल्स पड़ी हुई हैं उस टेप ड्राइव के ऊपर उनकी एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है यूजर को ऐसी कमांड्स जो है उनको उनकी एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है जिसके थ्रू से वो बैकअप ले सके या कोई और जो है वो टेप ड्राइव के कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सके। ये प्रिविलेजेस जो है वो उसे हमें देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको इसकी जरूरत ही नहीं है। यूजर का पर्पस क्या है टास्क परफॉर्म करने का, कि वो जस्ट एक स्पेसिफिक फाइल को टेप ड्राइव से एक्सेस करना चाहता है और उसको प्रिंट करना चाहता है, तो उसको हमें सिर्फ उस स्पेसिफिक फाइल की और उस प्रिंटर की एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। So this is the principle of least privilege, that a user or a program should be given just enough privileges or rights that are needed to perform a particular task. And the reason that why we are providing just limited set of privileges or rights, because we want to ensure that damage जो है, if the resources or objects are misused, the damage will be minimum. So it will, principle of least privilege, it limits the damage if entity has a bug or it gets abused. For example, वो यूजर जो है अगर वो उसकी इंटेंशन जो है वो से malicious intentions हैं, वो बाकी यूजर्स की जो टेप ड्राइव पे फाइल्स पड़ी हुई उनको एक्सेस करना चाहता है, तो वो नहीं एक्सेस कर पाएगा, बिकॉज वो सिर्फ अपनी फाइल को जो है सिर्फ उसी को एक्सेस कर पाएगा। सो अगर वो उसको मिसयूज करता है, उसको अब्यूज करता है, तो डैमेज जो है दैट विल बी मिनिमम, सिर्फ उसकी फाइल की हद तक डैमेज होगा, बाकी जो फाइल्स पड़ी हुई है उस स्टोरेज मीडियम के ऊपर दे विल नॉट बी जो है डैमेज्ड। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट कैन बी स्टैटिक। This means the privileges are the rights which we are allocating to this process or user. These privileges can be static. This means these privileges can be granted to this process during the life of the system or during the life of that process. Like, अब उसको हमने कौन से privileges या rights जो है वो allocate करने हैं, हमने उसको printer access allocate करनी है। तो ये printer access जो है ये उसको just उसकी एक्सेस की ड्यूरेशन क्या होगी, जितनी देर तक वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, अपनी उस फाइल को जो है जब तक कि वो प्रिंट नहीं कर लेता। तो ये एक स्टैटिक एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जो है अगर हम प्रिविलेजेस जो है वो किसी को ग्रांट करते हैं तो इट इज नोन एज स्टैटिक प्रिविलेजेस। इन अदर वर्ड्स इट मींस दोज प्रिविलेजेस जो है दे डोंट चेंज। फॉर एग्जांपल, अगर जो है से एक लाइब्रेरी के अंदर जो है सिस्टम पड़ा हुआ है जिसके ऊपर जो है आके स्टूडेंट जो है वो अपनी फाइल्स जो है उनको प्रिंट कर सकते हैं, आके उनको रीड कर सकते हैं वहां पे, और उनके ऊपर जो है वो एडिटिंग वगैरह करके उसको प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो प्रिविलेजेस ग्रांटेड है वो फॉर द लाइफ ऑफ द सिस्टम है। दोज प्रिविलेजेस विल वर्क टिल द सिस्टम हैज लाइफ, टिल द सिस्टम इज देयर, बिकॉज there are different students who are coming and who are going, और वो कभी कोई स्टूडेंट आ जाता है वो फाइल उसके ऊपर जो है वो उसको प्रिंट करता है, कभी कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाता है। तो ये जो प्रिविलेजेस हमने ग्रांट किए कि कोई भी स्टूडेंट आके फाइल्स को प्रिंट कर सकता है, दीज प्रिविलेजेस हैव बीन ग्रांटेड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम। So during the life of this system, these privileges can be granted. So it is known as static privileges because we are not going to change these privileges until the system is there or until the students are there which are using this system. The second case is कि जो privileges हैं, they can be dynamic. This means privileges can change by the processes as needed.
So in this case जो है privileges जो है they can be dynamic, means कि they can change from time to time. For example, on a particular day, say we may allow students to print their files, while on the other days we don't allow students to print their files. Like हम कह सकते हैं कि वीकेंड के ऊपर जो है स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फाइल्स को प्रिंट नहीं कर सकते, या जो है कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है वो फाइल्स को प्रिंट नहीं कर सकते, सिर्फ जो है आपके से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं. तो ये जो है इसको कहते हैं डायनामिक प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेजेस जो है दे कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमारी पॉलिसी जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इन दिस केस जो है अगर हमारी पॉलिसी चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, से अगर आज हमने कहते हैं कि जी फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज जो एक स्टूडेंट जो फाइल को प्रिंट कर सकता है, बियॉन्ड दैट जो फाइल को प्रिंट नहीं कर सकता, एंड वी कीप शिफ्टिंग दीज डेज आर नॉट स्टैटिक. समटाइम्स हम कहते हैं कि जी वो मंडे को कर सकता है फाइल प्रिंट, समटाइम्स हम कहते हैं वो मंडे को नहीं कर सकता. तो हमारी जो सिचुएशन जो है वो हमारी डायनामिक है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे कैन, the privileges by which those objects can be accessed, they keep changing. So in this case we must have mechanisms that allow domain switching or privilege escalation. Privilege escalation means के एक यूजर की privileges जो हैं वो हम उनको बढ़ा सकते हैं, उसको more privileges जो है वो ग्रांट कर सकते हैं. तो इसको कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन. लाइक आज अगर हमने उसको सिर्फ एक स्टूडेंट को प्रिंटर की प्रिविलेज दी है कि वो प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, से इन फ्यूचर जो है अगर हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, दिस मीन्स हम उसको और प्रिविलेजेस जो है वो ग्रांट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो सिस्टम का बैकअप भी ले सकता है, या जो है वो सिस्टम के ऊपर डेट और टाइम को भी चेंज कर सकता है. दिस इज नोन एज प्रिविलेज एस्केलेशन. दैट इज द यूजर विल बी ग्रांटेड मोर प्रिविलेजेस with respect to time. And similarly, a similar concept is domain switching. Domain switching means कि students जो हैं they can belong to different domains. Like एक domain हम बना सकते हैं कि ये जो है ये these students are the first light students, ठीक है, these are the students which are say on campus day scholar students. अब उनकी privileges जो है वो different हो सकती है. Like जो हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स हैं दे कैन यूज दिस सिस्टम व्हिच इज इन द लाइब्रेरी 24/7. दैट इज दे कैन यूज द सिस्टम एट एनी टाइम. वेयर एज जो डे स्कॉलर्स हैं हम कहते हैं कि दे कैन यूज द लाइब्रेरी सिस्टम्स जस्ट इन द कॉलेज या ऑफिस ड्यूरेशन, दैट इज फ्रॉम से 9 to 4 PM. तो डोमेन स्विचिंग मीन्स कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक डे स्कॉलर स्टूडेंट है, हम उसको उसकी कोई स्पेशल नीड है कि उसको जो है वो ज्यादा देर के लिए जो है बियॉन्ड द कॉलेज टाइमिंग्स भी उसको सिस्टम यूज करना है, तो हम उसकी डोमेन जो है वो स्विच करते हैं, उसको टेम्परेरली उसको उस डोमेन में डाल देते हैं जिसके अंदर जो है वो हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स हैं. डोमेन स्विचिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि उसकी प्रिविलेजेस जो हैं, जो उसकी प्रिविलेजेस जो है वो हम उनको चेंज कर सकें. कि पहले उसकी प्रिविलेज थी कि वो सिस्टम को एक ऑफिस या कॉलेज टाइमिंग्स के अंदर ही यूज कर सकते हैं. अब हमने उसकी डोमेन चेंज किया ताकि वो 24/7 जो है वो सिस्टम को यूज कर सके. तो अगर तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो है ये डायनेमिक है, दिस मीन्स इन दैट केस वी शुड हैव मैकेनिज्म्स दैट अलाउ डोमेन स्विचिंग एज वेल एज प्रिविलेज एस्केलेशन. Need to know a similar concept regarding access to data. Another concept which is similar to the principle of least privilege is need to know principle. This is another principle known as need to know principle. Now, what is this principle? This principle means at any time a process should be given only those resources that it currently requires to complete its task.
This is known as need to know principle. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जिस तरह एक प्रोसीजर की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक प्रोसीजर जो है इट शुड हैव द नॉलेज ऑफ ओनली पास्ट पैरामीटर्स एज वेल एज लोकल वेरिएबल्स टू कंप्लीट इट्स टास्क. तमाम जो प्रोसीजर्स होते हैं, एवरी प्रोसीजर जो है इट परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क. लाइक एक स्क्वायर रूट का प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर विल परफॉर्म द स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर. अब इस प्रोसीजर को जो है क्या जानने की जरूरत है, इसको जस्ट वो पैरामीटर चाहिए जिसका इसने स्क्वायर रूट लेना है, या इसके अंदर कोई इंटरनल लोकल हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं टू परफॉर्म दिस स्क्वायर रूट जो है ऑपरेशन. बियॉन्ड दिस प्रोसीजर शुडंट नो कि मेन प्रोग्राम जो है उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, बिकॉज इसको जरूरत ही नहीं है ये जानने की. इसका जो टास्क है इस स्क्वायर रूट प्रोसीजर का, वो ये सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है विदाउट नोइंग दिस के मेन प्रोसीजर के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से जो है वेरिएबल्स हैं वो डिफाइंड है. तो दिस इज नोन एज नीड टू नो प्रिंसिपल. कि एक प्रोसेस या एक यूजर जो है उसको जस्ट आप वो रिसोर्सेज या वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनकी एक्सेस जो है वो ग्रांट करें जो कि उसको करंटली रिक्वायर्ड है, और जो करंटली रिक्वायर्ड नहीं है आपको उनकी एक्सेस जो है वो ग्रांट करने की अभी उनको जरूरत नहीं है. अब इसका बेनिफिट क्या होता है नीड टू नो प्रिंसिपल का? इसका बेनिफिट ये होगा कि अगेन जो हमने बात की है, जिस तरह हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो है, हमने कहा इट लिमिट्स द डैमेज इफ एंटिटी हैज अ बग और इट गेट्स अब्यूज्ड. सिमिलरली नीड टू नो प्रिंसिपल जो है ये भी हमें यही बेनिफिट देता है कि दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल टू लिमिट द डैमेज टू द सिस्टम. इफ there is some malicious program or some user who wants to harm the integrity of the system, तो because हमने उसको सिर्फ उतना इंफॉर्मेशन या उतने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जितने उसको रिक्वायर्ड हैं, तो वो ज्यादा हार्म जो है वो सिस्टम को नहीं पहुंचा सकता. इसकी एक और एग्जांपल जो है वो हम ऐसे भी ले सकते हैं नीड टू नो की, कि फॉर एग्जांपल एक यूजर जो है वो, जिस तरह हमने पहले बात की कि वो एक टेप ड्राइव से डेटा रीड करता है, एक फाइल को रीड करता है टेप ड्राइव से, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करता है. लाइक से उसने कोई एरे जो है वो या स्टूडेंट रिकॉर्ड्स जो है वो रीड किए हैं टेप ड्राइव से, उसके बाद उन रिकॉर्ड्स को वो सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करता है, उसके ऊपर से और फंक्शंस अप्लाई करता है लाइक मीन निकालना या उसका मोड जो है वो डिटरमिन करना, एवरेज कैलकुलेट करना, और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद वो इस फाइल को जो है वो प्रिंट करता है. अब हम इस यूजर की एक्टिविटी को दो फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. पहला फेज जिसके अंदर जो है ये यूजर जो है वो टेप ड्राइव को एक्सेस करेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए, और उसके बाद वो उन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करता है, उनके ऊपर जो डिजायर्ड ऑपरेशंस हैं एवरेज कैलकुलेट करना वगैरह वो उनको परफॉर्म करता है. ये उसका पहला फेज हो गया. दूसरा फेज जो है उसमें वो जो उसने ये इंफॉर्मेशन जनरेट की है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की, जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया उसको उसके बाद वो प्रिंट करता है. ये दूसरा फेज हो गया. अब नीड टू नो प्रिंसिपल ये कहता है कि आप यूजर को ये टास्क परफॉर्म करने के लिए, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दो रिसोर्सेज की एक्सेस चाहिए. एक तो उसको वो फाइल की एक्सेस चाहिए जो कि टेप ड्राइव के ऊपर पड़ी हुई है, और दूसरा उसको प्रिंटर की एक्सेस चाहिए ताकि वो उसको प्रिंट कर सके. नाउ अकॉर्डिंग टू नीड टू नो प्रिंसिपल हमें यूजर को ये दोनों रिसोर्सेज एक ही टाइम पे देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसकी एक्टिविटी दो फेजेस के अंदर हम कह रहे हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले फेज के अंदर हम जस्ट उसको टेप ड्राइव की एक्सेस देते हैं ताकि वो उस फाइल को वहां से स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को रीड कर सके, और जब वो रिकॉर्ड्स को रीड करके मैनिपुलेट कर लेगा, उसकी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर लेगा, देन हम उसको दूसरे फेज के अंदर जो है वो प्रिंटर की एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, और जब प्रिंटर की एक्सेस प्रोवाइड करेंगे तो उससे टेप ड्राइव की एक्सेस जो है वो वापस ले लेंगे.
यानी पहले फेज के अंदर हमने उसको सिर्फ टेप ड्राइव की एक्सेस दी या प्रिंटर की एक्सेस नहीं दी, दूसरे फेज के अंदर हम उसको प्रिंटर की एक्सेस दे रहे हैं, टेप ड्राइव की एक्सेस उससे वापस ले रहे हैं। यानी उसको सिर्फ उतने रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं जो कि उसको करंटली नीडेड है अपनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके मुकाबले में दूसरा केस ये भी हो सकता था, अगर हम नीड टू नो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको दोनों रिसोर्सेज स्टार्ट में ही देने पड़ेंगे, चाहे वो उसको एंड पे यूज कर रहा है प्रिंटर को, लेकिन हमें उसको वो स्टार्ट में ही एलोकेट करना पड़ेगा। तो अब इस नीड टू नो का बेनिफिट भी यही है कि अगर वो कोई डैमेज जो है अकर होता है सिस्टम के अंदर, इफ सम डैमेज हैपेंस इन द सिस्टम, तो जो डैमेज के जो रिजल्ट्स हैं, जो डैमेज की जो बाउंड्री है, दैट विल बी लिमिटेड, ओनली अ सर्टेन एंटिटी और ऑब्जेक्ट विल बी डैमेज्ड, बाकी चीजें जो है वो अनअफेक्टेड होंगी। Okay, any question up to this point? Okay, keeping up with the principle of protection, we must consider the grain aspect of the protection. In this context, there is rough grain privilege and fine grain privilege management. ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। रफ ग्रेन प्रिविलेज मैनेजमेंट क्या है कि रफ ग्रेन प्रिविलेज मैनेजमेंट इज इजियर, सिंपलर, but least privilege now done in larger chunks. रफ ग्रेन का मतलब ये है कि आप, जैसे अभी हम नीड टू नो प्रिंसिपल की एग्जांपल उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि यूजर को जो है हमने प्रिंटर और जो टेप ड्राइव, जो फाइल है टेप ड्राइव के ऊपर, उसकी एक्सेस बैक वक्त स्टार्ट में ही दे दी है दोनों की। दिस इज नोन एज रफ ग्रेन मैनेजमेंट, रफ ग्रेन प्रिविलेज मैनेजमेंट। यानी इसको आप तमाम के तमाम जो रिसोर्सेस या ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने उस प्रोसेस की लाइफ साइकिल के अंदर, वो तमाम आप उसको स्टार्ट में ही एलोकेट कर दें। अब रफ ग्रेन प्रिविलेज मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या होता है अगर आप उसको स्टार्ट में ही दोनों रिसोर्सेज दे देते हैं? इसका बेनिफिट ये है कि दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज ईजियर। क्या आपको उसको बार बार जो है जाकर पूछने की या उसको आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप उसको एक ही वक्त में नहीं देते, आप उसको फेजेस में रिसोर्सेज या ऑब्जेक्ट्स एलोकेट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, आपको यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस कि वो कब कितना फिनिश कर लेता है अपनी एग्जीक्यूशन को, कब उसको नेक्स्ट रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपको उसका ट्रैक करना पड़ेगा उसकी प्रोग्रेस को, या अगर आप खुद ट्रैक नहीं कर रहे तो प्रोसेस को जो है वो आपको मैसेज सेंडिंग के थ्रू इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जी मैं अपना पहला फेज जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, नाउ आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट फेज, और नेक्स्ट फेज में मुझे ये वाले ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ये मुझे एलोकेट कर। तो मैनेजमेंट जो है दैट बिकम्स डिफिकल्ट इन दैट केस। लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट में सारा कुछ दे के आराम से जाके साइड पे सो सकते हैं, दिस मीन्स मैनेजमेंट इज इजियर नाउ, इट इज सिंपलर। हाउएवर, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लीस्ट प्रिविलेज जो है इट इज नाउ डन इन लार्ज चंक्स। लार्ज चंक्स का मतलब ये है कि आप उसको तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही टाइम पे एलोकेट कर रहे हैं, लार्ज चंक्स में एलोकेट कर रहे हैं। पहले तो हमने उसकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन को स्मॉलर चंक्स के अंदर या फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया कि इस फेज के अंदर हम उसको ये रिसोर्स देंगे, इस फेज के अंदर ये रिसोर्स देंगे। बट नाउ हमने उसके फेजेस को कह लेंगे लार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया या कंबाइन कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल फेजेस, नाउ वी हैव फ्यू फेजेस, और हम जो है उसको रिसोर्सेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो एलोकेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी नीड विद इन दैट पर्टिकुलर चंक। दूसरा जो है इसका कंसिक्वेंटली इसका जो डिसएडवांटेज जो है, एक और डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि हमारा जो नीड टू नो प्रिंसिपल है दैट विल बी वायलेटेड। बिकॉज व्हाई इट इज वायलेटेड,
बिकॉज अकॉर्डिंग टू नीड टू नो प्रिंसिपल हमें उसको ऑब्जेक्ट्स एलोकेट करने थे एज पर द रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट, लेकिन अब हम उसको उसकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एलोकेट कर रहे हैं। तो नीड टू नो प्रिंसिपल जो है इट हैज बीन वायलेटेड। द एग्जांपल ऑफ फाइन ग्रेन्ड privilege management is traditional Unix processes. Unix ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अर्लियर इसके आपके अलग वर्जन्स हैं, जो ट्रेडिशनल यूनिक्स सिस्टम है, इन दैट सिस्टम a user is given the privileges of root. तो जो यूनिक्स के अंदर जो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, they have the root privileges. Root privileges means they have the privileges of administrators. So a user or a process can do anything that it wants to do in the system.